खुश नहीं है लोग कुछ भी करने के बाद। पैसे नहीं है तब भी खुश नहीं है, पैसे हैं तब भी खुश नहीं है। तो मतलब खुश कैसे रहे? और हाउ डू यू स्टे हैप्पी? मतलब जरूरी है कि मेरे पास पैसे होंगे तो सक्सेस होगी, या पैसे खुशी आएगी? और वो खुशी भी थोड़ी उन सबके पास तब भी नहीं होती। तो मतलब व्हाट शुड आई डू टू जस्ट बी खुश रहो बस? Love this question. Last 2-3 सालों में ना, after I think I met you in 10x Growthcon, after I started doing more Vipassana, like before that I used to think यार मैं spiritual नहीं हूँ. Like मुझे लगता था spiritual की definition है कि God, भगवान, Jesus, अल्लाह में believe करो, pray करो, become more religious. I thought वो spiritual है. But I realized that no, I'm spiritual. I may not be always going to temples and doing puja part and all that. But I think I'm more spiritual than a lot of people. This is a bold claim. But मुझे ये spirituality समझ में आने लगी कि क्या है spirituality. Spirituality actually जिसने समझ लिया उसने खुश रहना भी सीख लिया लाइफ में. तो वो spirituality क्या है? 2 parts. In my ways, in my सरल भाषा में समझाता हूँ. Spirituality is when you know yourself and your universe, right? आप खुद को समझ लिया तो आधी spirituality आ गई. फिर दूसरा पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज व्हेन यू फोकस ऑन एडिंग वैल्यू टू पीपल, हेल्पिंग पीपल, सर्विंग पीपल इन व्हाटएवर यू डूइंग, वेदर यू सेलिंग अ प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोग्राम और सोशल सर्विस, इट डज नॉट मैटर. तो खुद को समझ लिया और सर्विस भावना, सेवा भावना से जब आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ली तो आप जिंदगी की सच्चाइयां जान लोगे. तो वो स्पिरिचुअलिटी इज द की टू हैप्पीनेस. विद इन स्पिरिचुअलिटी एक चीज जो मैं हमेशा अपने मेंटीज को बोलता हूं, हमेशा मेरे फॉलोअर्स को बोलता हूं, इज डिटैचमेंट. हाउ डू यू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम योर गोल्स, एम्बिशंस, मनी, इवन पीपल? राइट. हाउ कैन यू लव ऑल दैट एंड येट यू बी डिटैच्ड? हाउ यू कैन लव योर पेरेंट्स एंड येट बी डिटैच्ड? डिटैच का मतलब ये है कि it's not like oh I don't care. It's like you care, you love them, you respect them, but you're not attached to them so much that their frequency or their mood or their way of wavelength will impact you. Beautiful. Right? Beautiful. Love that. I've seen a lot of people when they they lose their loved ones because they were so connected, so attached, they go into depression. They become so sad for days, months, weeks, years. ऐसा नहीं होना चाहिए यार. हमको जिंदगी की सच्चाई ये है कि जो हम आए हैं तो हमको जाना है कभी ना कभी. Right? So you love them, but don't get attached to them so much that it becomes a burden on you, that you can't take that burden and you can't produce anything from that. Same for success. अगर मुझे आदत हो गई एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल की कि मुझे 10 करोड़ 15 करोड़ बन के मैं ऐसे घर में रहता हूँ. Absolutely. So let's say मेरा गोल है to buy a jet plane in 2025, right? तो I love my goals. I care about my goals, but at the same time I'm not attached. नहीं भी हुआ तो I will not be like अरे यार ये साल का गोल है 40 करोड़ 50 करोड़, नहीं भी हुआ तो it's okay. It's an infinite game. It's not a game of like 1 year. Like पूरी जिंदगी खेलना है. जब तक जिंदा है तो the reward is not the ultimate thing that you're looking at, the goals. Reward is experiencing this journey. That this itself is reward. Life itself is reward. तो किसकी चीज को लेके हम क्यों टेंशन ले रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? Be detached. So you love setting the goals because this is our nature. ये हमारा धर्म है as a human being, evolution. Like जैसे आग का धर्म है जलाना, right? पानी का धर्म है शीतल होना. इंसान का धर्म है खुद को जानना, सेवा करना और आगे बढ़ते रहना. Like keep marching forward, coming back to your dad's advice. ये हमारा धर्म है. तो चलते रहना है without any attachment, आगे बढ़ते रहना है. Then you become very powerful. Like when you don't have that attachment to anything or anyone. Like I'm not saying सन्यासी बन जाओ, हिमालय चले जाओ. Sure. But in a way that you have that feeling, it gives you more peace, love and joy and happiness. नहीं, I like your answer very much because आपने कहा स्वयं को पहचानो, but you said that's only 50% because इस दुनिया में रह रहे हो. तो जो भी प्रोडक्ट सर्विस बेच रहे हो उससे वैल्यू ऐड करो, बिकॉज आप एक आप कुछ भी हो, आप व्यापारी हो, जो भी हो, आपका वो धर्म है. सो इस दुनिया में वो धर्म निभाना है. हिमालय में बैठ के कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ कर्म नहीं बनता. सो दैट इज अमेजिंग. और हमारे ऑफिस में there's a रोहिणी who's been with me for 15 years, तो जिन्होंने हमारी एक आपके साथ ये मीटिंग भी जो कोऑर्डिनेट करी थी,
तो मैं उसको ये बोलूंगा कि 2025 सितंबर में हमारे वो देव के साथ मेरे को जेट पे उड़ना है, तो 2 दिन का कैलेंडर फ्री रखना। आज से ही बुक कर लेता हूँ कि मैं भी विजुअलाइज करूंगा आपके साथ। Amen, amen, brother. Absolutely. We gonna fly and maybe हम एक दूसरे के जेट प्लेन फ्लाई करेंगे. ऑसम। मेरा एक सपना थोड़ा दूसरा है, लेकिन जैसे ही ये इंटरव्यू खत्म होगा मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि सपने पे मैं काम कर रहा हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम वेरी श्योर कि आपके साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है, कि अभी हमको दिल नहीं कर रहा देव को जाने देने का, बट टू रिस्पेक्ट द टाइम एंड ऑल्सो कि मेरे एडिटर्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि सर आपने बोला था इतना है, यहाँ कट डालना है, यहाँ ये डालना है, क्योंकि हमने सारी चीजें पहले ही प्लान कर ली थी क्वेश्चन के हिसाब से। So we will stop this episode right now, and all of you people are going to win a few prizes like you do at the end of every episode. Once you answer the questions, I'm going to ask देव से आपने क्या सीखा, तीन चीजें आपने मुझे बतानी है। कमेंट करके अगर आप YouTube पे दे रहे हो और मेरे ईमेल पे अगर आप पॉडकास्ट पे दे रहे हो, the first 10 people are going to get those prizes couriered to you. So stay tuned to this interview. Take care of yourself. Thank you very much, Dev, and look forward to talking to you soon again. Thank you. Loved it. Thank you so much, Abhi, for this opportunity, and love all of you guys. God bless you.